But before we enter into the topic we have selected for discussion today, a big event, a controversy has happened, and which has been the subject matter of discussion across the country, and that is the leader of the Congress party, ex-president of Congress party, Mr. Rahul Gandhi, his membership to the parliament has been cancelled. I'll say cancelled. And he has been declared disqualified. And this has happened in the wake of a judgment in a case whereby he was charged for defamation. And he was penalized under section 500 of IPC for defamation. And this is not the first occasion when he has been tried under this particular section. But this is for the first time that he has been convicted, and convicted for 2 years. And as soon as he was convicted, the matter was taken cognizance by the Speaker of the House, and his membership was cancelled with immediate effect, taking recourse to section 8 of the Representation of People's Act 1951. इस पर एक मिनट चर्चा करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि अगर हम संविधान के विषय पर चर्चा करते हैं और संवैधानिक बातें जहां पर डिस्कशन में है, वहां पर अगर हम लोग इस विषय को नहीं उठाएंगे, चर्चा नहीं करेंगे, तो किस फोरम पर चर्चा? तो आप लोगों के मन में भी ये सवाल रहा होगा कि कितना लीगल है, कितना पॉलिटिकल है, हाउ फार इट इज जस्ट, फेयर, रीजनेबल, लीगल, ethical, political. So there must have been many questions which you must be looking for the answers. तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या पार्लियामेंट में सदस्यता और उसका डिस्क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, ये तय करने के लिए कानून बनाने के पावर्स पार्लियामेंट को है क्या, और अगर है तो कहां से आए? कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक it speaks about the union legislature, and we have seen that. और जब हम यूनियन लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोअर हाउस एंड द अपर हाउस, और हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स. Though the president will not be the member of either house of the parliament, but he shall be an integral part of the parliament. यहां तक हमको सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है. But you must be recollecting that the qualifications for the member, for becoming member of the parliament, either in the Lok Sabha or in Rajya Sabha, they are specifically given under Article 84 of the Constitution. And what are these qualifications? The person must be citizen. If he want to become the member of Lok Sabha, he must have completed the 25 years of the age. और अगर राज्यसभा में सदस्य होना है तो कम से कम 30 वर्ष की उनकी आयु होना चाहिए. और इसी के साथ यानी आयु, सिटीजनशिप, ही शुड बी द वोटर, चाहे किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो, बट हिज नेम मस्ट बी देयर इन द इलेक्टोरल रोल. ये 3 क्वालिफिकेशन 84 में हमने देखे, और इसके साथ में एक चौथा लिखा हुआ था कि एंड द पार्लियामेंट बाय लॉ में प्रिस्क्राइब और he shall possess all other qualification as prescribed by the law. ऐसा कोई वर्डिंग है उसमें. यानी क्या वर्डिंग है कि ये क्वालिफिकेशन तो लगेंगे ही, आर्टिकल 84 कहता है. इसके अलावा जो भी क्वालिफिकेशन अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया है और उसमें क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब किए हैं तो वो भी आवश्यक होंगे. सिमिलरली आर्टिकल 102 स्पीक्स अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन. डिस्क्वालिफिकेशन में क्या कहा गया कि पर्सन should not be of unsound mind, he should not be disqualified by law, he should not be an insolvent, and should not be disqualified under the provisions of any law passed by the parliament. यानी डिस्क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन तो प्रिस्क्राइब कर ही है, साथ में पार्लियामेंट को इंपावर करता है कि आप कानून बनाकर एडिशनल क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन ऐड कर सकते.
तो सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का मामला नहीं है, बट इट कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड बाय द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट। ऑब्वियसली ऐसा अगर नहीं होता तो इतने साल से द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 ये अभी तक स्टैट्यूट बुक पर नहीं होता। तो यस, वी डू हैव दिस लॉ। So yes, we have this law of the land, this law of the parliament, which prescribe additional qualification and disqualifications for becoming member of the parliament. अब हम बात आते हैं उस मुद्दे पर जो आज हर टीवी चैनल और न्यूज़पेपर में चालू है। 1989 में अमेंडमेंट होता है और सेक्शन 8 में कुछ डिस्क्वालिफिकेशन ऐड किए जाते हैं। उसके बाद भी 2003 में भी अमेंडमेंट होता है, अटेम्प्ट होता है, 2013 में भी होता है, लेकिन 2013 के अमेंडमेंट्स इफेक्ट में नहीं आते, जिसको कि ऑर्डिनेंस के द्वारा लाए गए थे। बाद में उसको लॉ नहीं बनाया जाता, एंड देन नेवर केम इनटू फोर्स एज अ पार्ट ऑफ द लॉ, चलिए, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डिनेंस। तो आज अगर हम सेक्शन 8 को देखते हैं तो उसका सबसेक्शन 3 कहता है, देखो इंपॉर्टेंट है, सबसेक्शन 1, देन सबसेक्शन 2, एंड देन वी शैल कम ऑन द सबसेक्शन 3। तो 1 में कुछ लिस्ट ऑफ द लॉज प्रिस्क्राइब की गई है, जहां तक मुझे ज्ञात, यानी लॉज रिगार्डिंग ड्रग्स, करप्शन, ऑफेंसेस अगेंस्ट द वाइफ, रेप। तो ऐसी एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ एक्ट्स कि इफ द ऑफेंस ऑफ एनी ऑफ दिस नेचर और दिस सेक्शन is been committed by a member, then he shall be disqualified. Not member, by a person. They have written a person. So a person who is convicted for any of these offense shall be disqualified. अब ये सारे एक्ट की लिस्ट दी है उन्होंने, और अगर आप उसको एक इन जनरल रीड करेंगे तो यू विल रियलाइज दैट ये सभी एक्ट जो प्रिस्क्राइब किए गए उसमें एक कॉमनिटी है, दे हैव सम यूनिफॉर्मिटी, or at least they address some uniform issues like corruption, like disloyalty to the nation, that custom act में कुछ किया आपने, holding of the goods का किया। सो आप अगर देशद्रोही है, इस प्रकार के ये सारे एक्ट, apart from a few reformative kind of legislations if they have been breached, so again you are acting against the national policy, और most of the law है वो hatred, if you are promoting the hatred between two groups on the basis of language, religion, culture, whatever may be the ground। और ये सारे ऑफेंस में आपको कितनी सजा होती है, 2 दिन, 2 महीने, 10 दिन, इसका कोई बंधन नहीं है। इफ अ पर्सन इज बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफ सच ऑफेंसेस देन ही शैल बी डिस्क्वालिफाइड। लेकिन इसके अलावा एक इन जनरल प्रोविजन सेक्शन 8 में की गई है, और उसमें कहा गया है कि whatever may be the offense, whether it is one among the listed above under subsection 1, यानी ऊपर दिए हुए ऑफेंसेस में से कोई हो या इसमें से भले ही ना हो, even if a person is being convicted for any offense which is not the part of the offenses specifically provided herein, but if a person is being convicted for not less than 2 years, यानी ऊपर वाले ऑफेंसेस में तो कुछ भी चलेगा, लेकिन अगर किसी और ऑफेंस में या कहीं पर भी 2 साल से कम की अगर सजा होती है तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। अगर 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा किसी को हो जाए तो फ्रॉम द डे द कन्विक्शन इज बीन गिवन, द पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम मेंबरशिप ऑफ द फ्रॉम बिकमिंग मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ये सबसेक्शन 8 का है। अब इसको लेकर इमीडिएटली जैसे ही कन्विक्शन हुआ एक नोटिफिकेशन इशू किया जाता है फ्रॉम द सेक्रेटेरिएट, एंड द डिसीजन वाज टेकन by the speaker
that his membership is been cancelled. अब सवाल ये उठ रहा है सारे डिबेट्स में कि इतना तुरंत क्यों, क्या उन्हें अपील? देखो, एग्जीक्यूशन ऑफ पनिशमेंट पर स्टे मिला है, पनिशमेंट पर स्टे नहीं मिला है, ये दोनों अलग अलग बात है। जिस दिन कन्विक्शन हो जाता है उसी दिन पुलिस आपको वहीं पर अरेस्ट कर लेती, लेकिन कोर्ट ने एग्जीक्यूशन पर स्टे लगाया है, पनिशमेंट पर स्टे नहीं। उन्होंने समय दिया है कि आप जब तक अपील आपका फाइल नहीं हो जाता तब तक आपका पनिशमेंट का एग्जीक्यूशन नहीं होगा, लेकिन पनिशमेंट पर स्टे नहीं। तो जब तक ये इस केस का अपील नहीं हो जाता, अपील में पनिशमेंट को स्टे नहीं हो जाता, तब तक ही इज कन्विक्टेड, ही इज कन्विक्ट। अब मामला ये उठ रहा है कि अभी तो अपील का पीरियड भी नहीं गया, अपील हुई भी नहीं, ऊपर हमने केस भी फाइल नहीं किया और तुरंत सदस्यता रद्द कर दी जाए, ये कहां तक उचित है? तो मुझे लगता है कि दैट वाज अ पॉलिटिकल अर्जेंसी, क्योंकि कानून में प्रावधान है। अगर आप इस सबसेक्शन के नेक्स्ट वाला सबसेक्शन देखेंगे, सबसेक्शन 4, तो उसमें लिखा है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग रिटर्न अंडर सबसेक्शन 1, 2 और 3, if a person is already member at the time of conviction, then his membership shall not be terminated immediately, or then his membership shall be terminated only on the lapse of 3 months. That is the period for appeal against the conviction. यानी ऊपर से स्टे लाने की आवश्यकता है, ऐसा तो कुछ लिखा हुआ मुझे नहीं दिख रहा प्लेन रीडिंग में। सो दीज आर टू डिफरेंट सिनेरियोज। जो व्यक्ति मेंबर नहीं है और अगर उसको सजा हो जाती है तो ही इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम डे 1। जिस दिन सजा हुई उसी दिन से ही कैन नॉट ट्राई टू बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन अगर कोई ऑलरेडी मेंबर है और फिर कन्विक्शन होता है तो ये दो अलग अलग सिनेरियो। और इन केस somebody is already member of the house and during his membership he got convicted, then I think law permits, or law has a specific provision, non-obstant clause is there. I don't know why this subsection is not been brought into the discussion, या फिर मेरी जानकारी कुछ पुरानी है, लेकिन 3 महीने वेट करना चाहिए था बिफोर द मेंबरशिप of Mr. Rahul Gandhi is being terminated by issuing the notification. आप डिस्क्वालिफाइड हो गए उस दिन से, ये ठीक है, लेकिन सदस्यता रद्द करने के लिए इंतजार करना चाहिए था। अब जो प्ली दिया जा रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में किसी एक मैटर में इसके पहले जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन दोनों तरफ से होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी और पार्लियामेंट में भी। तो ऐसे कई मामले हैं। प्रोमिनेंट तो आपको मालूम होगा, लालू प्रसाद यादव, या फिर झारखंड में थे। तो वी हैव सो मेनी केसेस, यानी करीबन 70 विधायक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में के अपनी सदस्यता इस ग्राउंड पर गवा चुके। तो ये मामला इस प्रकार से इसके पहले भी कोर्ट में जा चुका है, और कोर्ट ने जो इंटरप्रिटेशन दिया था वो ये दिया था कि अ पर्सन इज वंस डिस्क्वालिफाइड, फिर अगर आप एक बार डिस्क्वालिफाइड हो गए हैं और अगर लॉ क्लियर है कि फ्रॉम द डे ऑन विच कन्विक्शन इज बीन गिवन, अगर उसी दिन आप डिस्क्वालिफाइड है तो फिर इस प्रकार से उनकी सदस्यता को 3 महीने और कंटिन्यू करना ये कहां तक उचित है? यानी दिस विल बी एन अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन। वन हु इज नॉट मेंबर, he will be disqualified from the same day, and one who is now the member will be disqualified only after the lapse of period for appeal. And therefore court has pronounced, मुझे उस केस का नाम याद नहीं आ रहा है, कि the person shall be disqualified from the same day of the conviction, that's all. अब उसकी मेंबरशिप रद्द करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर कोर्ट साइलेंट रहा है।
लेकिन कोर्ट ने कहा है कि लॉ इज वेरी क्लियर दैट द पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड ऑन द सेम डे। अब ये तो बहुत क्लियर है, कानून में भी लिखा है, लेकिन मामला यह है कि सदस्यता कब रद्द होनी चाहिए। डिस्क्वालिफाइड का तो कोई इशू नहीं। यस, ही इज डिस्क्वालिफाइड from the day on which conviction is pronounced. But whether his membership is to be immediately terminated or the speaker was supposed to wait for another 3 months and wait for the outcome in the appeal, that is the question to be answered by the politician and the house. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि it was hurriedly taken decision या फिर politically motivated decision। उससे क्या हुआ कि अब पॉलिटिकल पार्टी को ज्यादा आंसर्स देने पड़े, यानी दोनों पॉलिटिकल पार्टी को, जिन्होंने डिसीजन लिया उनको भी और जिनके खिलाफ डिसीजन गया, इमीडिएटली सदस्यता रद्द हो गई। तो दिस इज द more political controversy than legal controversy. I think legally the things are very much clear, but politically they have been complicated by the parties on both the sides. डिबेट डिस्कशन में भी इस बात पर सिर्फ चर्चा हो रही है कि आपने इमीडिएटली क्यों किया, इसके पूर्व सदस्यों को तो आपने समय दिया था, लेकिन कानून के प्रावधान चर्चा में नहीं आ रहे कि कानून स्पष्ट रूप से कहता है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग, if a person is already member at the time of conviction, तो इतना समय इंतजार करना चाहिए। अब इंतजार करना चाहिए, ये लॉ होने के बावजूद उसमें एक डिफिकल्ट सिचुएशन अराइज हो जाती है, और इसलिए हाउस को हमेशा ये प्रिविलेज रहता है कि वो कभी भी डिसीजन ले सकता है, क्योंकि एक तरफ एक व्यक्ति डिस्क्वालिफाइड घोषित हो चुका है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि उनको अभी भी सदस्य रहने दो अगले 3 महीने तक। तो हाउस अपना मॉरल स्टैंडर्ड, इथिकल बिहेवियर और पायस ऑब्लिगेशन इसको ध्यान में रखते हुए दे आर फ्री टू टेक द डिसीजन। but when law has specifically given this immunity, taking such a decision by the speaker and issuing the notification, how far it will stand the scrutiny of law, I am doubtful. So disqualification हुआ है, ये लीगल पोजीशन, उसको हम पॉलिटिकल नहीं कह सकते, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन के बाद इमीडिएट हाउस से उनकी सदस्यता टर्मिनेट करना, ये मुझे लगता है कि पॉलिटिकल डिसीजन है रेदर देन लीगल डिसीजन। तो कंट्रोवर्सी अप टू हिज कन्विक्शन कि उनके माता पिता ने बलिदान दिया, उनके पिता ने बलिदान दिया है, दादी ने बलिदान दिया है, इसलिए उनको सजा नहीं होनी चाहिए। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस। वॉट एवर इज जुडिशियल आउटकम वो आ चुका है, और अगर उसमें कोई कमियां है तो वो अपील में दूर की जाएंगी। दैट इज द करेक्ट फोरम टू रेज योर आर्ग्यूमेंट्स। लेकिन क्या हाउस की सदस्यता से उनको इमीडिएट इफेक्ट से बाहर कर देना, ये मुझे लगता है कि लीगली बराबर नहीं हुआ है, और ये ज्यादा देर तक कोर्ट में टिकेगा नहीं, ऐसा मुझे लगता है। तो दिस इज व्हाट आई रीड इनटू द कंट्रोवर्सी ऑफ मिस्टर राहुल गांधी। अगर आपको कुछ और इसमें लगता है कि यू कैन सप्लीमेंट और यू कैन करेक्ट मी, तो नाउ वी कैन हैव 5 minutes to discuss this, and then we shall be talking about the liability, contractual and tortious.